Dear student, we'll begin with medieval India and we'll begin with Delhi Sultanate. So this is very much important from your examination point of view, and this is lecture 1. Now, before I begin, I will make this practice to you guys where we will see previous year question paper. Okay. So before we are beginning, just see this question. The arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent. First statement. Second statement, introduction of arc and doom in the region of architecture. Establishment of Timurid dynasty in the region. Select the correct answer using the code given below. I would request you all to kindly pause this video and take this exam or attempt this question. ठीक है. अब लेक्चर के बाद हम वापस अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जहां पे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है यूपीएससी में. So, before we begin Delhi Sultanate, I will talk about Turkish invasions. Okay, why Turkish invasions and why it is necessary. See, Delhi Sultanate starts from 1206 and it ends in 1526. Okay. Why 1206? Because Kutubuddin Aibak, he becomes the first Sultan of Delhi, and 1526 is the first battle of Panipat. ठीक है. As you guys are aware, the first battle of Panipat was fought between of Panipat. Any idea? Was fought between? It was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Lodi of Lodi dynasty. That means Mughals were not part of medieval India, right? But actually, when we talk of Delhi Sultanate, so Mughals were not part of Delhi Sultanate. But yes, Mughals were part of medieval India. It is the death of Aurangzeb which gives rise to modern Indian history. Okay. So before we move into next thing, we must understand why is Turkish invasion important for Delhi Sultanate. ठीक है. Delhi Sultanate. ठीक है. देखो, मोहम्मद ऑफ गजनी जो था और मोहम्मद ऑफ गोरी, ये दोनों जो है अफगानिस्तान से हैं. ठीक है. अगर प्रेजेंट डे इंडिया का मैप बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा अपीयर करेगा. ठीक है. ऐसा अपीयर करेगा. यहां पे आप देखोगे पाकिस्तान है. ठीक है. यहां पर आप देखोगे कि खैबर पास है. खैबर पास. देन वी हैव बोमल पास. ठीक है. एंड देन वी हैव बोलन पास. थ्रू दिस पास, Indian subcontinent was connected to Afghanistan and Central Asia, and through Afghanistan connected to the Persian world
and Arabian world. So you need to first understand the geography of the region to know why such history was created. Geography plays a very important role in creation of history. So, as you can see in the map, ये एरिया सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन कंट्री क्या क्या है आज के डेट में? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. It is very important that you should know their capitals, the boundary they are sharing with, okay, and these countries. This comes in your examination every now and then. You will also see that ईरान के ऊपर एक सी है, इस सी को कहते हैं कैस्पियन सी, ठीक है। इस कैस्पियन सी के नेक्स्ट है आपका अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया एंड टर्की. दिस इंटायर बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है टर्क्स. Why they are called as Turk? You need to understand. Because Turkish is a language. ठीक है, ये लिंगुअल आइडेंटिटी है. चूंकि आप लोगों ने स्कूल में बहुत पढ़ाई की है, तो मुझे बताना पड़ता है कि टर्की और टर्किश दो अलग अलग टर्म है. टर्की में भी जो लोग होते हैं वो भी टर्किश है, इस एरिया में भी जो लोग थे वो भी टर्किश और टर्क्स हैं, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है. तो इंडिया में इधर के लोगों ने इन्वेड किया ड्यूरिंग 10,001 सॉरी 1001 से लेके 1175. 1175 से इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं आपको 1206 तक, ठीक है, यहां के लोगों ने इन्वेड किया इंडिया को. दिस इन्वेशन फ्रॉम 1001 एडी टू the battle, second battle of Terrain, which was fought in the end of 12th century, is important for you to understand that this invasion is known as Turkish invasion. ठीक है, अब आप पूछोगे कि तभी ही क्यों हुआ टर्किश इन्वेशन. तो सिंपल सा बात है भाई, टर्किश इन्वेशन उससे पहले इसलिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब्बासिद एम्पायर एंड अब्बासिद एम्पायर कंट्रोल देम, ठीक है. तो अब्बासिद एम्पायर कहाँ था? इसका सेंटर पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान. तो ये जब तक पावरफुल था तो बाकी इधर छुटपुट कोई नेता नहीं बनता था. जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यहां पर नेता पैदा हुए, ठीक है. तो गजनी और यहां पर एक जगह है घोर, ठीक है. तो 1001 एडी में यहां पर एक किंग था, उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है. महमूद ऑफ गजनी. इसके 150 साल बाद मोहम्मद गोरी पैदा होता है, ठीक है, और वो इंडिया को इन्वेड करता है फ्रॉम 1175 एडी, ठीक है. एंड दीज टू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्किश इन्वेशन इन इंडिया. So, as you can see in this diagram, you can find that there is Ghazni over here and there is Ghur over there. ठीक है. So from this Khyber Pass,
people were able to cross the mountain ranges of Suleiman and Kirthar range and enter India. Since India was known for its wealth, okay, so wealth of India has always attracted the invaders. And Ghazni and Mahmud of Ghazni and Muhammad of Ghori were no exception. Let's talk about Muhammad of Ghazni. Okay? See, why is the reason Muhammad of Ghazni used to invade India? See, first, let's see the reason. He invaded India because he needed the wealth of India. Okay? Wealth of India. Okay? To build up his own empire. His own empire. Okay? Second, he wanted contingent of वॉर एलिफेंट. ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन में. जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला वाला दिखाया. तो वॉर एलिफेंट का जो कंटीजेंट था एशिया में ना, वो सिर्फ इंडिया प्रोवाइड करता था. अगर इंडियन एलिफेंट को देखो तो ये तो इंडियन एशियन एलिफेंट है, तो 60% ऑफ द एशियन एलिफेंट इज विथ इंडिया. ठीक है. फिर तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन ये था कि ही वांटेड टू स्प्रेड इस्लाम. ठीक है. ये सब नियो कन्वर्ट्स हैं, तो नियो कन्वर्ट्स ज्यादा रिलीजियस होते हैं. ठीक है. ये हर चीज में होता है. आप हरे कृष्णा हरे रामा में फॉरेनर्स को देखिएगा, तो वो सारा चीज फॉलो करते हैं जो करना चाहिए सनातन धर्म में. ठीक है. जो क्रिश्चियन नए नए बनते हैं उनका भी देखिएगा लक्षण. जो नए 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 इस्लाम फॉलो करते हैं उसके लिए तो बहुत सारे प्रोवर्ब हैं हमारे यहाँ. नया नया मुल्ला 5 टाइम का नवाजी, प्याज ज्यादा खाता है. ठीक है. तो थर्ड रीजन था स्प्रेड ऑफ इस्लाम. ठीक है. तो फॉर दीज थ्री रीजन ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. ठीक है. फ्रॉम 1001 AD to 1026 AD. This reign of invasion was for 25 years. ठीक है. Since he needed wealth, so definitely he did not invaded the center of power. ठीक है. He always invaded rich cities and temples. तो रिच सिटी में इसने किसको इन्वेड किया? कन्नौज. ठीक है. और टेम्पल में इसने किसको इन्वेड किया? सोमनाथ, मथुरा. ठीक है. अगर आप रोमिला थापर को पढ़ेंगे, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो सोमनाथ में जो शिवलिंग है एज पर रोमिला थापर, दैट इज वन ऑफ द 3 sacred stones which was taken away from Makkah. Jat, Lat and Sumannat. सुमन्नत. ठीक है. मक्का में भी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम देयर वाज आइडल वर्शिप्स. ठीक है. तो उसमें एक स्टोन होता था, प्राइमरी 3 मेजर स्टोन्स थे या आइडल्स थे वहां पे, जट लट सुमन्नत. तो हिंदुइज्म में भी है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके अनुसार रोमिला थापर के अनुसार वो यहाँ पे किया गया है. बट देन अगेन दैट्स ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शी हैज गिवन. ठीक है. तो सोमनाथ में क्या था? वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगास, 12 ज्योतिर्लिंगास जो हिंदुइज्म में है वो है. मथुरा में आप जानते हैं कृष्णा राधा जी का मंदिर है. ठीक है. सो दीज वेर वेरी रिच टेम्पल्स एंड कन्नौज वॉज नोन फॉर कमर्स. ठीक है.
Kannauj is also called as fragrance city of India. ठीक है, ये सेंटर है आपका सेंट का, जो इत्र होता है, सेंट, परफ्यूम, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसको वो अटैक करता था। ठीक है, इंटायर पर्पस क्या था इसका? पैसा लेना। इसका कोई पर्पस नहीं था इंडिया में अपना कोई राज बनाना। द ओनली पर्पस व्हाट मोहम्मद गोरी हैड वाज टू टेक एंड प्लंडर द वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, so what he did with these plundered wealth which he took away from India? ठीक है, so what he did with this plundered wealth? ठीक है, he built up his empire at Ghazni. ठीक है, with the plundered wealth he created university, libraries, museum, and one of the largest mosque of that time. That mosque was known as Celestial Bride Mosque. ठीक है, at Ghazni, at गजनी, गजनी क्या बनाया? मॉस्क, लूट के पैसे से। ठीक है, इट हैड, दिस मॉस्क वाज सराउंडेड बाय 3000 क्वार्टर्स फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स। सो गजनी इज known as an emperor in his country. ठीक है, in India he is nothing but a plunderer and looter. ठीक है, इसका आर्ट में कोई योगदान था जिससे आपको पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में? तो यस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके कोर्ट में कुछ पोएट्स थे जो बहुत फेमस हुए। पहले वन थे जो इनके पोएट थे, उनका नाम था फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है शाहनामा। ठीक है, वो एक तरह का क्रोनिकल है दैट एरा का। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी के लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई एक पोएट के द्वारा, उनका नाम था अल उत्बी। ठीक है, ही वॉज द हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद, महमूद गजनी। ठीक है, इनके समय में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो अरब वर्ल्ड बोलता है कि ही इज द पर्सन हु इन्वेंटेड अलजबरा, उनका नाम था अल बुरूनी। ठीक है, बट एक्चुअली ही वॉज ब्रॉट बाय द गजनी हिमसेल्फ इन इंडिया to do research in what India has achieved in science and technology. It was totally copied and translated as per few people into Arabics. And for that, Al-Biruni is attributed as father of algebra in the Arab world. He wrote a book, and that book is known as
तहकीक ए हिंद। ठीक है, these are the possible question which will come in your examination with related to Mahmud of Ghazni. ठीक है, in UPSC mains they will ask you what are the possible reason why Mahmud of Ghazni invaded India, or they will ask you objective questions as I have mentioned regarding Firdausi, Al-Utbi, Al-Buruni, or Celestial Bride building or mosque at Ghazni. ठीक है, this is the possible questions they may ask you in your examination. ठीक है, तो याद रखिएगा अल बुरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर दोसी का शाहनामा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड महमूद ऑफ गजनी आर्ट एंड कल्चर एंड हिज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वही है, he was patron of literature। ठीक है, he was patron of literature and he built his empire at Ghazni। ठीक है, गजनी, सेलेस्टियल ब्राइड, मॉस्क, दूसरा क्या था, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरी, म्यूजियम्स। ठीक है, दिस इज व्हाट ही डिड। नाउ वी विल मूव एंड सी अबाउट मोहम्मद ऑफ गोरी। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इससे पहले हमने मोहम्मद गजनी को पढ़ा। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी में ऑलमोस्ट 150 साल का डिफरेंस है। क्या, दोनों के इन्वेशन में। मोहम्मद ऑफ गोरी जो था ये इंडिया में इन्वेड करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1175 में। ठीक है, कहां कहां, 1175 एडी ही इन्वेडेड मुल्तान, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां मुल्तान है, एंड उच्च। ठीक है, वहां पे इन्होंने इन्वेड किया। ठीक है, 1178 एडी में ये गुजरात इन्वेड किए। ठीक है, गुजरात जब इन्वेड किए, ठीक है, तो गुजरात जब इन्वेड किए तो इन्होंने गोमल पास से इन्वेजन किया। गोमल पास, एंड ही वाज डिफीटेड बाय गुजरात के जो किंग थे उनका नाम था भीमदेव। एक्चुअली भीमदेव नहीं, उनकी मां ने हराया था इन द बैटल ऑफ माउंट अबू। ठीक है, उसके बाद से ये कान पकड़ा कि हम गोमल पास से तो दोबारा नहीं आएंगे, तो फिर ये खाइबर पास से आया, और 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ, ठीक है, टेरेन हुआ, एंड ही वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। उस समय क्या होता था ना कि इंडियन किंग्स काफी एथिकल होते थे, तो किसी को डिफीट करने के बाद उसको माफ कर देते थे, तो इसको माफ कर दिए, एंड ही वाज बैडली डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन।
1192 में ये वापस इन्वेड करता है और ये जीत जाता है, एंड ही किल्स पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल ऑफ तेरेन में ही किल्स पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। एंड ही प्लंडर्स अजमेर एंड दिल्ली, और दिल्ली में अपने स्लेव को गवर्नर बना के चला जाता है। द नेम ऑफ दैट वेरी स्लेव वॉज कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। एंड 1206 मोहम्मद घोरी डाइज। ठीक है। इसको कोई बेटा नहीं था, नो सन। ठीक है। सो आफ्टर हिज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक proclaims himself as the first sultan of Delhi। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो इनके डेथ के बाद, कब डेथ होता है इनका? 1206 एडी में। ठीक है। गवर्नर ऑफ दिल्ली वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक proclaims himself as Sultan of Delhi because the reason given is Muhammad Ghori had no successor। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए, फ्रॉम 1206 with the proclamation of Qutbuddin Aibak, the first dynasty which ruled Delhi or Delhi Sultanate is known as slave dynasty। The Arabic word for slave is Mamluk, so it is also known as Mamluk Sultanate। ठीक है। But few of the historian has disputed that we should not call them Mamluk dynasty। Why? Because after death of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak has proclaimed his freedom। That's the reason we should know this dynasty by the tribe of Qutbuddin Aibak। His tribe is Ilbari tribe। ठीक है। We should understand that Qutbuddin Aibak was man of bravery and courage। Man of bravery and courage। He was also considered as very liberal and benevolent। That's the reason he is called as Lakh Baksh, which means giver of lakhs। ठीक है। Once he became or proclaimed that he is the free Sultan of Delhi, what he did is that he immediately cut ties from Ghurid Empire। इससे क्या हुआ?
घुरिद एम्पायर का जो कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल एशियन एम्पायर से चल रहा था, उससे वो अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ करता है, thus enabling himself to develop Delhi independently. Develop Delhi independently. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इज कंसिडर्ड एज वेरी लिबरल एंड ए ब्रेव वॉरियर। ठीक है, ही इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट टू मॉस्क्स। ठीक है, नंबर वन, कुवत उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, QUWW, कुवत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। ठीक है, ये जो मॉस्क है ना, ये बना है 27 हिंदू टेम्पल एंड जैना टेम्पल को तोड़ करके। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय इरेजिंग डाउन 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। ठीक है, ये मॉस्क आज भी आप देख सकते हैं, इसके रिमेनेंट पार्ट, इट इज इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। दूसरा मॉस्क जो था वो जैन टेम्पल को कन्वर्ट किया गया था, एंड द नेम ऑफ दैट मॉस्क वाज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 डेज में मॉस्क बना दिया गया। कैसे बनाया गया? बाय कन्वर्टिंग ए जैन टेम्पल इनटू ए मॉस्क। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको आएगा इनसे, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी ऑफ मुस्लिम सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तीनों के ऊपर। कुवतुल इस्लाम मॉस्क, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एंड कुतुब मीनार। ठीक है, विद दिस कुतुबुद्दीन ऐबक इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 AD। कुतुबुद्दीन
died while playing चौगना, चौगान, ठीक है। What is चौगान? It is something similar to polo. He was succeeded by his son आराम शाह। नाम में ही आराम है, ऊपर से शाह है, कोई काम करेगा नहीं। सो ही वॉज टोटली अनफिट एंड इनकेपेबल रूलर। He was overthrown by Iltutmish, who was slave of Kutubuddin and also son-in-law, ठीक है। When Kutubuddin Aibak threw Aram Shah, at that time he was also governor of Bihar। तो बिहारी लोग देख रहे हो ना कितना रिवोल्ट करता है। तो ही वॉज गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। एंड वेन इल्तुतमिश बिकेम द किंग, he had to face enemy both at foreign front and domestic front, ठीक है। फॉरेन फ्रंट में उनको डिफीट करना पड़ा याल्दोस, रूलर ऑफ गजनी, ठीक है। दूसरा उनको डिफीट करना पड़ा कुबाचा, ये तभी घोरी एम्पायर के अंदर मुल्तान था ना, तो रूलर ऑफ मुल्तान, ठीक है। डोमेस्टिक फ्रंट में इनको फाइट करना पड़ा राजपूत किंग से, ठीक है। कहां कहां के ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि मेंस में लिखोगे और आइडिया चाहिए। नंबर 1 रणथंबोर, अजमेर, ग्वालियर, मालवा, मांडू, उज्जैन, ठीक है। मालवा, मांडू, उज्जैन, 4, 5, 6, ठीक है। 5 एंड 6, ठीक है। यू कैन मेक नोट ऑफ इट, ठीक है। ये तो डोमेस्टिक फ्रंट और इंटरनल फॉरेन फ्रंट की कहानी हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो इल्तुतमिश का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया, वो था यूज ऑफ डिप्लोमेसी इन टैकलिंग द थ्रेट ऑफ मंगोल्स, ठीक है। तो उन्होंने कैसे डिप्लोमेसी के थ्रू मंगोल्स के थ्रेट को हटाया? तो क्या हुआ, 1221 में मंगोल्स रीच टू द बॉर्डर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। while chasing द रूलर ऑफ ख्वारिज्म, ठीक है। मंगोल्स जो मंगोलिया से निकले और सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कैप्चर करने लगे, तो वहां से ख्वारिज्म का जो रूलर था
उसको वो चेज करना शुरू किए, सेंट्रल एशिया का था। एंड दे केम अप राइट टू द इंडस बैंक ऑफ इंडस रिवर. सो द रूलर ऑफ खारिज्म, he came and requested Iltutmish that do provide me shelter. But Iltutmish was smart fellow. He understood that the Mongols were led by Genghis Khan. और चंगेज खान का उस समय दहशत था, ठीक है. सो ही रिजेक्टेड द प्ली ऑफ रूलर ऑफ खारिज्म टू गिव हिम शेल्टर, ठीक है. दिस प्लीज चंगेज खान, ही गॉट प्लीज्ड, एंड एज ए रिजल्ट he thought that I should not attack Iltutmish. And with this, Delhi Sultanate was spared from the reign of terror of Genghis Khan. ठीक है. अब इल्तुतमिश को क्या करना था? डोमेस्टिक फ्रंट पे अपने आप को मजबूत करना था. तो उसके लिए इसने पहला काम किया कि इसने लेटर ऑफ अप्रूवल लिया. लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्यूर. क्यों? क्योंकि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था नहीं, उसका स्लेव था. उसके बेटे आराम शाह को हटा करके सल्तनत में आया था. तो लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्यूर लिया इसने खलीफा से. खलीफा वाज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर. जहां पे इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला. किस चीज का मिला? खलीफा से फॉर्मल रिकॉग्निशन कि तुम इंडिपेंडेंट किंग हो, ठीक है. सेकंड, he created an organization of पावरफुल टर्किश नोबल्स. जहां से आया था वहां के आदमी को प्रेफरेंस दिया और उनको कहा गया चालीसा और ग्रुप ऑफ 40, ठीक है. ये सब टर्किश नॉवल थे जो इल्तुतमिश को अपना मास्टर मानते थे, ठीक है. ठीक है. इल्तुतमिश के स्लेव थे और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हाईएस्ट पोजीशंस. ऑल हाई ऑफिसेस वेर गिवन टू देम, ठीक है. इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या किया इन्होंने? इन्होंने लाया इक्तादारी सिस्टम. अपने किंगडम को स्मॉल एंड लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड पार्सल्स में डिवाइड किया. ईच ऑफ देम वेर कॉल्ड एज इक्ता, ठीक है. एंड दीज इक्ताज वेर असाइन टू द नोबल्स. और बोला जाता था कि आप इसी से अपना सैलरी निकालो, ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर करो. दीज नोबल्स वेर कॉल्ड एज इक्तादार्स, ठीक है. फोर्थ जो इन्होंने काम किया, ही वॉज द फर्स्ट टू स्ट्रक coins with Arabic inscription in India. इंस्क्रिप्शन, ठीक है. जो सिल्वर कॉइन थी उसको कहा गया टंका. जो कॉपर कॉइन थी उसको कहा गया जीतल. तो आप जो वो गाना सुनते हैं ना, बेबी डॉल में सोने दी ये दुनिया जितल दी, तो वहां पे यही बात बोली जाती है कि आप, दुनिया कॉपर का है और मैं सोने की हूं. एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में, यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल विद शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने भी सिल्वर कॉइन्स निकाला था. इस सिल्वर कॉइन्स का नाम था रुपया. आज तक हम लोग रुपया बोलते हैं. कॉपर कॉइन्स, उसका नाम था दाम.
तो पहले लोग पूछते थे कितना दाम लोगे, तो टुडे इट हैज बिकम द वर्ड फॉर कॉस्ट, बट दाम एक्चुअली मीन्स कॉपर कॉइन्स रिलीज्ड बाय शेरशाह सूरी, ठीक है, विच वॉज लेटर ऑन कॉपीड बाय Akbar. Akbar did nothing but 90% of thing he copied what Sher Shah Suri did, and he administered it well. In terms of administration, everything what Sher Shah Suri did was copied by Akbar. ठीक है, तो यहां तक इल्तुतमिश की कहानी है। ठीक है, 1236 एडी में इल्तुतमिश का डेथ हो जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश डाइज। ठीक है, एंड विद डेथ ऑफ इल्तुतमिश he has actually understood that none of his sons were worthy of his being successor. So he has nominated his daughter Rajia Sultan as his successor. Okay. So Rajia came to power in 1236 and she remained in power till 1240. Okay. When she was worthy of being a ruler and she was only ruled for 4 years. So what went wrong? The thing was that Rajia was nothing but an able administrator, but problem was that she was a woman in a male centric world. She was very brave. She used to dress up like a man, like king. ठीक है, she used to lead army in battlefield. ठीक है, and she gave up parda. This infuriated the Turkish nobility. And they revolted against her. One other reason was that she has given the position of commander of stables or the horses, ठीक है, कमांड ऑफ स्टेबल, स्टेबल में हॉर्सेस आता था, टू याकूत, एंड याकूत वाज नथिंग बट अफ्रीकन स्लेव. So this was something which infuriated the Turkish nobility, and they revolted under the leadership of Altunia. Altunia was governor of Punjab. So Razia went to suppress the revolt of Altunia, but Altunia imprisoned and captured Razia. तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी का प्रपोजल दिया और रजिया और अल्तुनिया शादी कर लिए. एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली. दिल्ली में जो टर्किश नोबिलिटी थे ना, उन्होंने क्या किया, ब्रह्म शाह, इनको अपना किंग चुन लिया, और फिर ऑन द वे टू दिल्ली फाइट हुआ. इस फाइट में अल्तुनिया और रजिया क्या हुए, वो हार गए, तो वो रिट्रीट किए टुवर्ड्स पंजाब. ठीक है, while they were retreating, their soldiers, इनका सोल्जर लोग इनको छोड़ के भाग गया, ये आइसोलेटेड हो गया. जब ये आइसोलेटेड हो गए तो इनको किल कर दिया गया खोखर ट्राइब के द्वारा, जो कि जाट्स थे. ठीक है, दे किल्ड रजिया एंड अल्तुनिया. विद दिस अल्तुनिया और रजिया का सल्तनत केम टू एंड इन 1240. ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ही जरूरी है. शी वॉज एबल विमेन जनरल, ड्रेस्ड अप लाइक किंग, led army in the battlefield, gave up parda. This all infuriated the Turkish nobility and they revolted under the leadership of Altunia. Altunia was governor of Punjab. ठीक है,
यही सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है। अब रजिया के डेथ के बाद उसका जो यंग ब्रदर था नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसको थ्रोन पे लाया गया, क्योंकि ब्रह्म शाह को लोग टॉलरेट नहीं कर पाए, वो सही में इनकेपेबल था और इल्तुतमिश वाज राइट। तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद पावर में आता है 1246 में। ही वॉज ओनली 17 ईयर ओल्ड गाय, वेरी गुड गाय। ही वॉज पीस लविंग पर्सन, पीसफुल गाय, बट ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। तो इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन चला गया हाथ में बलबन के। ठीक है। बलबन अपनी बेटी का शादी इससे कर देता है। ठीक है। और बलबन फिर क्या करता है, ही रूल्स फॉर 20 years ऑन बिहाफ ऑफ नसीर उद्दीन मोहम्मद। महमूद। ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, नसीर उद्दीन महमूद नाम है इसका, महमूद। ठीक है। अब 20 साल बाद इसका डेथ हो जाता है 1266 में। और फिर बलबन गियास उद्दीन का टाइटल लेता है, एंड ही रूल्स अगेन फॉर नेक्स्ट 20 years, फ्रॉम 1266 टू 1286, एज एज गियास उद्दीन बलबन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पूरे दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब गयासुद्दीन बलबन, देखो, जैसे ये लीडरशिप लेता है 1266 में, तो इसको चैलेंज कौन करेगा? इसको चैलेंज करेंगे वही ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स जिसको इल्तुतमिश बना के गया था। तो ही इज चैलेंज्ड बाय चलीसा। ठीक है, दे चैलेंज्ड हिम। ठीक है। सेकेंड चैलेंज इसको फ्रंटियर के रीजन से किंग लोग के द्वारा आया। थर्ड चैलेंज इसको था मंगोल का। अब देखो कि गयासुद्दीन बलबन हर चैलेंज को कैसे डील करता है। ठीक है। पहला काम ये क्या किया, इस चलीसा को डिसबैंड कर दिया। ठीक है। दूसरा काम क्या किया, उसने जो फ्रंटियर एरिया थे, स्पेशली जो दोआब रीजन था, दोआब का मतलब होता है बिटवीन दो एंड आब, दो मतलब टू, आब का मतलब होता है वाटर स्ट्रीम। ठीक है। तो गंगा और यमुना के जो बीच के जो चीफ्स थे, उनको इसने क्रश किया, उनके रेबेलियंस को क्रस्ट। ठीक है। और मंगोल से डील करने के लिए इसने क्या किया, अपने दो बेटों को अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस। एक का नाम था मुहम्मद, दूसरे के नाम था बुगरा खान। देखो, ये बुगरा खान जो था ना, बहुत कैपेबल आदमी था, पर इसका भी डेथ हो जाता है बलबन के डेथ से पहले, नहीं तो यही लीडर बनता। ठीक है। तो जब मंगोल एंटर किए इंडिया में ना, तो दे वर डिफीटेड इन पंजाब बाय दीज टू सन्स ऑफ गयासुद्दीन बलबन। उसमें बुगरा खान सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तीनों प्रॉब्लम से डील कर लेता है। अब ये रीऑर्गेनाइज करता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। ही रीऑर्गेनाइजेस द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उस चीज को जब वो रीऑर्गेनाइज करता है, तो थ्योरी ऑफ ब्लड एंड आयरन देता है। ठीक है। ब्लड का मतलब क्या होता है, ये कहता है
किंगशिप जो है ना वो डिवाइन है। इज डिवाइन। ठीक है। किंग इज द ऑरिज किंग का मतलब क्या होता है? किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक है। सो एनी वन हु विल कम टू हिज कोर्ट हैज टू डू वन थिंग, सिजदा। ठीक है। सजदा स्पेलिंग है सिजदा, SIJDA, सजदा। तो इसमें करना क्या है? इसमें एक प्रैक्टिस है जहां पर जो भी इसके नोबेल्स होंगे इसके कोर्ट में, दे विल प्रैक्टिस नीलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टचिंग द ग्राउंड विथ देयर फोरहेड। ठीक है। दूसरा क्या था? पाइबोश, टच माई, किस माई फीट। तो देखो जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड में लोग थे ना, वो सिर्फ भगवान के सामने, अल्लाह के सामने सजदा करते थे, पर ये बलबन उनसे करवाता था, तो उनका जितना एटीट्यूड था ना, सब इसने तोड़ के रख दिया। ठीक है। दूसरा, इसने क्या किया? इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। कैसे? जितने भी ओल्ड लोग थे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यंग लोगों से, जबकि ये खुद बुढ़ा था। ठीक है। पर ही वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड यंग बाय नेचर। ठीक है। सो ही डिड दैट एंड इन 1286 ही डाइड। ठीक है। नेक्स्ट 4 इयर्स तक इसके बेटे लोग सिंहासन पे बैठे एंड दे वेर यूजलेस फेलो। तो इसका जो लास्ट सन था 1290 में उसको मार देता है। उसका नाम था काइकुबाद। उसको मारता कौन है? जलाल उद्दीन खिलजी। और इसकी वजह से खिलजी वंश का जन्म होता है 1290 AD में। ठीक है। पर बलबन से एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि जो बलबन का मकबरा है, मुजोलियम है, ठीक है, वो ये है। ठीक है। कुतुब मीनार के आसपास ये आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये मकबरा है बलबन का। इस मकबरा में पहली बार ट्रू आर्क, ट्रू आर्क बनाया गया है। ट्रू आर्क क्या होता है ना, कि कोई बीम के सपोर्ट से बिल्डिंग इसके ऊपर नहीं बनती है। ये जो स्टोन है ना, दिस स्टोन इज कंसिडर्ड एज की स्टोन। और ये भार ले लेता है इस तरफ का भी, इस तरफ का भी, और पास कर देता है इस तरफ और इस तरफ। सो द ट्रू आर्क was built or brought to India by the Turks। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इट इन द म्यूजियम ऑफ बलबन। ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे, उस क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करेंगे। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, consider the following: the arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of arc and doom in the region। तो टू गलत है। बलबन ने टर्क ने ही कर दिया था। बाबर कब आया है? 1526। बलबन कब मरा है? 1286। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 250 साल पहले तो दिख रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, सब जहां सेकंड काटो। आपके पास तीन ऑप्शन बचा, दो ऑप्शन बचा, तीन कॉमन है दोनों में, तो बाय डिफॉल्ट तीन करेक्ट होगा। आंख बंद करके तीन करेक्ट करो। अब पहले के ऊपर फोकस करो। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बाय बाबर नहीं, मंगोल्स ने किया था उससे पहले। ठीक है। तो वन भी गलत हो गया, तो वन काटो। बचा थ्री इज द राइट आंसर, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है।
So this is how you have to prepare for your examination in a very objective manner. ये इस लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग का क्लास चलता रहेगा, ठीक है, लेक्चर अपलोड होता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। टेक केयर, गुड नाइट।